Welcome to Param Guru Pathshala English Medium School, Sarsa. Myself, Kratika Bhatia, Class 5th, subject name is Social Study, Unit 5, and the chapter name is Natural Resource. Today's topic cover is explanation. So let's start our chapter Natural Resource. So what is the meaning of the natural resource? Natural resource are the surrounding given to us by nature. ओके एंड रिसोर्स में संसाधन. ओके अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं नेचुरल रिसोर्स के, मतलब प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति नेचर से मिला है. ओके सो वी गेट दैम फ्रॉम द अर्थ एंड द इन्वायरमेंट अराउंड अस. ओके सो नेचुरल रिसोर्स आर ऑल अराउंड अस एंड दे आर द एयर वी ब्रीथ, ओके, एंड द लैंड वी वॉक ऑन, एंड द वाटर वी ड्रिंक, the plants we enjoy, the wind that blows, and the animals' life surrounding us, and the sun that gives their heat and light. Natural resources are very important in our life because they are used by us to fulfill our daily needs. So, natural resources are called the wealth of a nation. Many countries have developed their resource and have become rich and prosperous. मतलब बहुत ज़्यादा इस नेचुरल रिसोर्स के कारण ही आज हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्रीज़ है वो रिच होती जा रही है ना, और समृद्ध बनती जा रही है, सफल होती जा रही है. ओके सो द कंट्रीज आर पुअर एंड द बैकवर्ड एज दे डू नॉट नो हाउ टू यूज, ओके, एंड द मेक देम यूजफुल एंड वैल्यूबल व्हेन एनी कंट्रीज डज नॉट हैव curtains. Resource they needs, they can trade with another country to get the resource. Okay, so what is the natural resource? So natural resource are the resource given to us by nature. Which one is we get them from the earth and the environment. So what is the name of resources? So it is the name is air, land, water, plants, wine, animal life, sun. Okay, next is the filling the blanks. Natural resources are called the answer is wealth of nation. Okay, now next topic is classification of resource. So what is the classification? So there are two types of natural resource. Which one is? First means renewable and second is non renewable रिसोर्स, मतलब जिसे हम बदल सकते हैं, है ना, जिसकी मरम्मत कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल. और नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो गैर नवीनीकरण, जिनको हम बदल नहीं सकते. ओके, जिनके हम बदलने भी सके तो उनका नवीनीकरण हो जाए, मतलब ओके, मतलब रिन्यूएबल मीन्स जिसकी हम मरम्मत करने योग्य होगा, बदल सकते हैं. बट नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, जिसे हम दोबारा से नया बना सके. ओके सो रिन्यूएबल रिसोर्स फर्स्ट इसके बारे में हम जानते हैं. सो रिन्यूएबल रिसोर्स आर द वन दैट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. इसका हम यूज़ बार बार कर सकते हैं. एंड दे आर एग्जीक्यूटेबल. ओके, मतलब जो अटूट रहता है, कभी भी टूटता नहीं है. तो सम एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर वाइन, सनलाइट एंड वाटर. ओके सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स दे आर the ones that do not grow and come back. okay, जो कभी बढ़ता नहीं है पर वापस हम उसे ला सकते हैं. once non-renewable resources are used up, it takes a very long time and to replace them. हम लंबे समय तक चला सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं. ओके सो दे आर ऑल एग्जीक्यूटेबल, ओके, एंड कैन नॉट बी रिप्लेस. इसे हम रद्द तो कर सकते हैं पर इसे रिप्लेस नहीं कर सकते. ओके सो some example of non-renewable resource are oil, coal, copper, diamonds, natural gas, minerals, iron ores, okay, and gold, silver, rocks. Fossil fuel is also one of the non-renewable resource. okay, and throughout the can be replaced. It make millions of years to be formed from the dead and preserved, मतलब जो सुरक्षित है, okay, संरक्षित है. रिमेन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित जीव होते हैं ना, उसे हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके सो अगेन द क्वेश्चन, ब्लैंक इज रिसोर्स कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. सो द आंसर इज रिन्यूएबल.
ओके, जिसका हम यूज़ बार बार कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स. सो व्हाट इज द यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स? Natural resources are used in several ways, okay, and many of them are essentially for our survival. जो हमारी आवश्यकता को हमेशा आवश्यकता के लिए हमेशा नेचुरल रिसोर्स हमेशा हमारे आसपास होता है. कैसे? तो इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज आर ह्यूजली dependent on natural resource, right, for their growth and development. So we need fuel and energy to run our machine, gadgets and vehicle. Next is most of the things we use in everyday life are derived from natural resource. For example, milk which we get from the cows makes animals a natural resource, right? Vegetables that we get from the plants and salt which is the minerals, okay, so are also natural resource. And wood that we get from the trees a natural resource, but they can be used to build house, make paper, used to fireplace and the stove for cooking. So water from rivers is used to produce electricity by building dams. Some natural resource can be used directly while other are processed, right? कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनका हम यूज़ डायरेक्टली कर सकते हैं. कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल एयर एंड वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली, राइट. However, there are other resource which needs to proceed before they are used. दूसरे रिसोर्स को हमें यूज़ करने के पहले उसे हमें उस चीज़ को प्रोसेस करना पड़ता है ना, उसको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें डायरेक्टली हमारे पास आ जाती है, जैसे एयर और वाटर. हमें एयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वाटर भी अपने आप ही हमें मिल जाता है बिकॉज ऑफ नेचर थ्रू. ओके, सो यहाँ पे वही दे रखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डायरेक्टली हमें नेचर दे देती है, जिसमें आता है एयर एंड वाटर. Okay, so some minerals are separate from their ores so that they can be used by us, like a petroleum, okay, is taken out from the earth in curd form. मतलब जो पेट्रोल होता है वो कच्चा फॉर्म में होता है अर्थ में, पृथ्वी में, है ना. तो इट इज़ रिफाइंड, इसे हम रिफाइन करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू द, इसे हम कन्वर्ट करते हैं किन की चीज़ों में, इनटू द पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ओके, एंड other product, right. So it is these refined products that are used in house and industry. Okay, so now again the filling the blanks. Petroleum is taken out from the earth in a crude form, right. Here we learn about the petroleum refined country. आपको इस पिक्चर्स में दिख रही होगी किस तरह से बनी हुई है पेट्रोलियम रिफाइंड कंट्री, रिफाइनरी फैक्ट्री, राइट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कच्चा माल के रूप में होता है, उसे रिफाइन करके फिर हम उसे कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल और अदर प्रोडक्ट में, राइट. सो कैन यू गिव मी एग्जांपल टू शो द यूज़ ऑफ पेट्रोल इन आवर डे टू डे लाइफ? क्या मुझे बता सकते हैं कि पेट्रोल का यूज़ हम हमारे पूरे दिन में कितनी बार करते हैं और कब कब करते हैं? ओके, सो डू टू द रैपिड rise the population natural resources are being used in large quantities. Research is being conducted by the scientists to produce alternative energy. It's called solar energy. Okay, इसे हम क्या कहते हैं? solar energy is one such a solar source of energy because it is the right described as the resource of the future. Advanced countries like Japan are developing cars that can run by solar energy. In India, biogas plants are successfully being used to provide fuel for cooking. Research is being done on how solar energy can be used for different applications. So, today wind is used to produce electricity, right? Which is with the help of the wind mills and wind turbine. जो इसकी हेल्प से बनता है उसे हम कहते हैं वाइंड मिल्स या हम वाइंड टर्बाइंस कह सकते हैं. ओके, सो बिजनेस ऑफ द producing electricity from the wind is growing fast. It is said that the soon wind farms will replace coal, oil and gas and power station. So here the picture of solar panel. You know about the solar panel. जैसे सोलर पैनल्स क्या होते हैं? जो सूर्य एक पैनल्स होते हैं जो हमारे सूर्य की जो रोशनी होती है, जो वेस होती है, रेस, वो जब उस सोलर पैनल पर गिरती है तो एक इलेक्ट्रिसिटी वो कन्वर्ट करती है, जिसमें खर्चा एक बार होता है, पर जब
हमारा जो घर का अगर लगाया है तो हमारा जो सोलर एनर्जी के थ्रू जो लाइटिंग होती है उसका बिल जो हमारा आता है ना वो बहुत कम आता है, बिकॉज हमें ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिली है, डायरेक्ट सूर्य से, सन से। ओके, तो आजकल बहुत सारे ऐसे प्लांट्स बने हैं जिसे हम कहते हैं सोलर पैनल, जहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो वहाँ पे ये लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। इसमें हमको कम एनर्जी में अधिक रोशनी मतलब अधिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है और ख़र्चा भी कम लगता है। उसी तरह से वाइंड टर्बाइन्स होते हैं। वाइंड टर्बाइन्स मतलब हवा के थ्रू बिजली पैदा करना, है ना, जिसमें जो आपने देखी होगी इस तरह से बड़ी बड़ी पोल्स होते हैं और उस पर 3 पंखे की अपने जो फ़ैन होते हैं उसी की तरह 3 फ़ैन की तरह पंखुड़ियाँ होती हैं और वो हवा के थ्रू चलती है, जिसे हम कहते हैं टर्बाइन। उसमें एक मशीन होता है ना, उसके थ्रू वो चलता रहता है और उसी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ओके, सो नियर द फिलिंग द प्लांट्स wind is used to produce electricity with the help of wind mills and wind turbine. Okay, नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण अब कैसे किया जाए। तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर द बिगेस्ट थ्रेट टू नेचुरल रिसोर्स, राइट, सो देयर अवेलेबिलिटी इज द बीइंग रिड्यूस ड्यू टू द देयर ओवरयूज ऑफ मिसयूज। रीड टू नो अबाउट दैट द इवन थॉट द टुडे द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर ऑन द अर्थ as there was when the earth was formed. We can use very little of the water. So why? This is because most of the water is too salty or frozen, right? Next is the let's us take an example of our natural resource. So water, with increasing industrial okay, and the population exploration and existing वाटर रिसोर्स आर बीइंग ओवर यूज टू मिस यूज। अब हमारे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसका मिस यूज़ भी हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रिया उससे भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी ज़रूरत पूरी होगी उसी उसी इंडस्ट्री एरिया भी बढ़ता जाएगा, है ना। सो वाटर इज़ बीइंग पॉल्यूटेड एंड द वाटर सोर्सेज आर बीइंग डिप्लेटेड, मतलब जो हमारा जो वाटर सोर्सेस है, मतलब पानी वाला जो भाग है हमारा सोर्स है संसाधन, वो अब प्रदूषित होते जा रहा है ना, और वो हिस्सा भी खाली होते जा रहा है। डेप्लेट मीन्स खाली हो जाना, है ना। वाई? बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल एरिया के कारण जो गंदा कारखानों का गंदा पानी होता है वो सारा उसमें प्रदूषित फैला रहा है, जिसके कारण पानी तो बचा ही नहीं है ना, बिल्कुल, क्योंकि पानी अब पॉल्यूटेड हो चुका है, या वो पीने लायक नहीं है या फिर किसी काम के लायक नहीं रहा है। ओके, सो इफ द कंटिन्यूस आवर प्लांट्स विल सून बिकम ड्राई एंड बैरन लाइक अ डेजर्ट। इसीलिए हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो भी अब खाली होते जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, या फिर वो अपने आप पानी का सोर्सेस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर पा रहे। इसलिए जो हमारे प्लेसेस है वो सब कैसे होते हैं, ड्रायर होते जा रहे हैं, बैरन हो रहे हैं, है ना, या फिर डेजर्ट में बदल जाएगा हमारे अर्थ। बैरन मीन्स बंजर हो जाना, है ना, जहाँ पे कभी कोई पेड़ पौधे नहीं होते उसे हम कहते हैं बैरन। और डेजर्ट एरिया मतलब रेगिस्तान वाला भाग, आपको पता ही है। इवन एयर एंड लैंड रिसोर्स आर बीइंग अफेक्टेड, इसी के कारण हमारा जो एयर है, हमारा जो लैंड है वो भी इफेक्टेड होती जा रही है। ओके, सो देयर इज़ ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इसी का एक ही सॉल्यूशन का एक ही इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो है कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब संरक्षण और सुरक्षा किसकी, हमारे नेचुरल सोर्सेज की। सो वी मस्ट मेक सिंसियर अटेम्प्ट टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर रिसोर्स so that our further generation are able to use and enjoy this resource. As we have done, the responsibility of taking care of this natural resource lies on our soldiers. Okay, so as responsible citizen of the earth, we must understand the importance of this task and do the needfully. We can do or bide by. We can do and abide by, like reducing our trips by car, encouraging carpooling with friends, and walking, talking, bus or riding our bicycle instead of driving. ड्राइविंग का रास्ते से बचेंगे, बजाय हम साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, है ना, या फिर कहीं जाने के लिए बस का यूज़ कर सकते हैं, है ना, या कहीं जाना है तो हम बातें करते करते कहीं से भी जा सकते हैं, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग
कंजप्शन ऑफ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, जितना बने हम इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का वेस्टेज ना करें, है ना, उससे बचाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उसे वेस्ट करने की। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ पेपर, इट्स अ लार्ज प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे पेपर्स जितने बने होते हैं वो ट्रीज से बने होते हैं, यू नो अबाउट दैट, है ना। अब ट्रीज ही नहीं होंगे तो ये क्या पेपर्स होंगे, नहीं होंगे। इसे जितना हो सके पेपर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो रिसाइकलिंग ओल्ड पेपर्स एंड यूजिंग रिसाइल्ड पेपर बैग, इसलिए आप अगर हो सकता है जो पेपर आपको काम नहीं लगता है तो उसको आपको वापस से मतलब रिसाइल करना चाहिए। कैसे, पेपर बैग्स बना के, है ना, पेपर से आप अलग अलग चीज़ें बना के उसको रिसाइकल कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज़ प्लांटिंग ट्रीज, जितना हो सके उतने आप ट्रीज को प्लांटिंग करें, वेनेवर वेरेवर एंड वी कैन, जहाँ तक हो सके उतना, जहाँ तक हो सके जब तक बन सके आप उतना प्लांटिंग कीजिए, जिससे हमारे सारे रिसोर्स एक साथ ठीक हो जाएंगे। सिवाय सिर्फ एक चीज़, मतलब प्लांटिंग से देखो कितनी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, हमारा एयर पोल्यूशन हट जाएगा, है ना, लैंड हमारी पूरी रिसोर्स जो बंजर हो गई, बैरन हो गई है, डेजर्ट बन गई है, वो फिर से ग्रीन हो जाएगी, है ना, वाटर जो पॉल्यूटेड है वो पूरा वापस से ठीक हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमारा जो सन जो ग्लोबल वार्मिंग का वाला पार्ट है वो भी ठीक हो जाएगा, है ना। हमारे जो एनिमल्स है वो सारे ठीक हो, वो सारे इनके कारण अच्छी तरह से रह पाएंगे, बिकॉज बहुत सारे एनिमल्स हमारे यहाँ से अभी तक ऐसे हो गए जो यहाँ से लुप्त हो गए या फिर कहीं चले गए या फिर है ही नहीं, है ना। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसे हम देखना अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और नेचुरल रिसोर्स के कारण, बिकॉज इसका वेस्टेज, इसका पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आज सारे जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है वो सारे पॉल्यूटेड हो चुके हैं। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, सो वी रिड्यूसिंग ऑल द trips by car, encouraging carpooling, right, walking, talking and by busing, and जितना हो सके उतना don't waste water and electricity, okay, reducing wastage paper and recycling old papers, okay, and the planting trees. Okay, so here we finish our chapter. The name is natural resource and chapter 5. So here the new words of this chapter. First one is renewable resource. It's called resource that can be used again and again. Non-renewable resource that cannot be replaced. So okay, जिसे हम बदल नहीं सकते. And solar energy means energy from the sun. जो हम sun जिसकी जो हम energy है ना वो हम कहाँ से लेते हैं, sun से. Okay. Next is let's revise this chapter. First, natural resources are the wealth given to us by nature, right? Which one is the water, land, air, sunlight, forest and minerals are natural resource. So here we start our renewable resources are the ones that can be used again and again. Sunlight, water and air are some of the renewable resources. Non-renewable resources are the one that take years from, like minerals, rocks, fossil fuels. Petroleum is refined to make petrol, diesel, kerosene and so on. Overuse of natural resource is the biggest threat. Solar energy is being used and described as the resource of the future. And today wind is used to produce the electricity with the help of windmills and wind turbine. So here we finish our chapter. We learn about the natural resource and classification of resource, right? Uses of natural resource, conservation of natural resource and conservation and protection. Okay, so today we learn about the natural resource. Some natural resources are water, land, air, sunlight, forest, minerals and there are the natural resource. Okay, so here we finish our chapter 5. The name is natural resource. I hope you like the chapter and learn about some things. Okay, so take care. Bye bye. See you soon. We meet you again.